So, brothers and sisters, we have been speaking a lot and many times about the new covenant. तो भाइयों बहनों हम बहुत बार नई वाचा के बारे में बात कर रहे हैं And many things we have been speaking about the new covenant. और नई वाचा के बारे में बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं And many of us also know the references now. और अभी तक हम सभी हम में से बहुत लोगों को वचन कहाँ पे है वो भी पता है, So that's a good thing. वो बहुत अच्छी बात है. Yeah. But what I was thinking is the truth has to work in our life. पर मैं ये सोच रहा था कि जो सच्चाई है वो हमारे जीवन में काम करे. We may know the truth, हम सच्चाई को जान सकते हैं but the truth has to set us free. पर उस सच्चाई को हमें स्वतंत्र करना है. And I want to, for this meeting, I just thought of it like that. तो इस सभा के लिए मैंने यही सोचा है. I just shared with some of our brothers. हमारे कुछ भाइयों से मैंने ये बांटी है. So this meeting is going to be a little different. तो ये जो सभा है थोड़ा सा अलग होगा. Okay? I'll be sharing something about what the new covenant means to me. मैं कुछ ऐसी बातें बांटूंगा यहाँ पे कि नई वाचा मेरे लिए क्या है उस विषय में. Okay? Because just knowing the truth and knowing any doctrine alone is not the main thing. सिर्फ सच्चाई को जानना और कोई सिद्धांत को जानना वो मुख्य बात नहीं होती है. I remember many years back, I knew how to talk about taking up the cross. कुछ वर्षों पूर्व मैं स्मरण करता हूँ कि क्रूस को उठाना क्या है इसके बारे में मैं जानता था, इसकी सच्चाई के बारे में. But in actuality, I was really not taking up the cross. पर स्वाभाविक रूप से वो जो क्रूस है मैं नहीं उठा रहा था. I was trying to make others take up the cross. मैं दूसरों को क्रूस उठवाने की कोशिश कर रहा था. So it doesn't mean that if we know the scriptures, that everything is going to be in our life. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वचन सब कुछ हमें पता है इसलिए वो सब कुछ हमारे भी जीवन में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता. So brothers and sisters, this truth of the new covenant came to me for some years now. ये जो नई वाचा की सच्चाई है कुछ वर्षों से ये मेरे जीवन में आई है. But I can say that it has brought a liberation in my life. पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस बात ने मेरे जीवन में स्वतंत्रता लाई है. So I have particularly tasted the fruit of it. और मैंने खास करके उसके जो फल है उसको चखा है. I would like to just share a few things about that. उसके बारे में कुछ बातें मैं यहाँ पे बांटना चाहता हूँ. Okay. And I'll not be sharing for long. मैं ज़्यादा समय के लिए बांटने नहीं वाला हूँ. After that, some of the brothers will share something from their life. उसके बाद कुछ भाई हैं जो आकर उनके जीवन से बांटेंगे कुछ. The brothers who normally come and share here, who take the role of sharing the word, they will share a few words. जो भाई अक्सर यहाँ पे आके बांटते हैं वो भाई जो हैं उनके जीवन से कुछ बांटेंगे. And then there will be opportunity for all of us to share something. उसके बाद हम सभियों के पास मौका रहेगा कि हम सभी अपने जीवन से बांटें. Okay, so that's a way. Please feel free to, and it's all about what the new covenant means to us. कृपया आज़ादी महसूस करें. ये सब कुछ इसके बारे में है कि नई वाचा हमारे लिए क्या है ये समझने के लिए. So, first of all, I have really have that faith of God's love. तो मुझे जो है परमेश्वर के प्रेम के बारे में पूरा विश्वास है. That's a part of the new covenant. तो ये नई वाचा का एक भाग है. That all shall know me from the least to the greatest of them. कहा गया है कि छोटे से लेके बड़े तक सभी मुझे जानेंगे. And confident of God's love. परमेश्वर के प्रेम के बारे में आत्मविश्वास से भरे हुए होंगे. That's what the word of God says. For all the time that God loves us. यही परमेश्वर का वचन कहता है कि हर समय परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं. 1 John 4:16 says that, and we have come to know and have believed the love which God has for us. पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 16वां वचन कहता है कि हमने जाना है परमेश्वर के पास आके परमेश्वर के प्रेम को हमने जाना है. So when I started simply believing the love of God, the love of God became mine. जब मैं परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करने लगता हूँ तब परमेश्वर का प्रेम जो है वो मेरा हो जाता है. I have no doubt about God loving me all the time. परमेश्वर के प्रेम के विषय में मेरे अंदर कोई भी जो है संदेह नहीं होता है हमेशा. Other thing is that I have come to know that I am a son of His. और एक बात जो है कि मैंने ये जाना है कि मैं उसका पुत्र हूँ. I'm not a slave. मैं अभी एक गुलाम नहीं हूँ. When I go to God,
I don't need to go in fear, but I can go in confidence. जब मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ तो मुझे डर कर जाने की जरूरत नहीं है, परंतु आत्मविश्वास से भरकर मैं जाता हूँ। That's the new covenant. यही नई वाचा है। The old covenant was the slavery. पुरानी वाचा जो थी वो तो गुलामी थी। Okay? They did not have that experience of God as their father. उनके पास परमेश्वर के एक पिता होने का एक अनुभव नहीं था। So when these two things are there, that we know God's love and we know we are His son, ये जो दो बातें होती हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं और हम ये जानते हैं कि हम उनके पुत्र हैं, then we don't have condemnation. फिर हमारे पास दंड की आज्ञा नहीं होती। This is the new covenant. ये नई वाचा है। No condemnation. कोई दंड की आज्ञा नहीं। I used to live in condemnation. मैं दंड की आज्ञा के अधीन जीता था। Not because I basically committed sin. इसलिए नहीं कि मैंने कोई पाप किए हैं। Because I always feel that does God want me to be a little better? और मैं हमेशा यही महसूस करता था कि क्या परमेश्वर मुझे चाहते हैं कि मैं और थोड़ा अच्छा बनूं? Is He satisfied with me? क्या मैं जैसा हूँ उससे वो संतुष्ट हैं? Do I need to improve myself? क्या मुझे अपने आप को और भी अच्छा करने की जरूरत है? I believe quite a number of you must be going through the same thing. मुझे लगता है कि आप में से कई लोग भी ऐसे ही एक बात से गुजर रहे होंगे। But the new covenant truth has made me feel that I am totally acceptable before God. परंतु नई वाचा की सच्चाई ने मुझे ये बता दिया है कि मैं परमेश्वर के लिए पूरी तरह स्वीकारने योग्य हूँ। I don't need to do anything. मुझे कुछ भी करने की जरूरत I am नहीं है। His. मैं उनका ही हूँ। I am His beloved. मैं उसका बहुत ही प्रिय हूँ। I don't have to prove myself. मुझे अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। He's already pleased with me. वो मुझसे पहले से ही खुश है। It was not like this before. ऐसा नहीं था पहले। Okay? So I go to Him 24/7. I go to Him freely. और मैं 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन ऐसे ही परमेश्वर के पास चले जाता हूँ। No condemnation. कोई दंड की आज्ञा नहीं। But the Word of God says there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कि प्रभु यीशु मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। Then I realized that to overcome any sin or to become like Christ, I cannot do it on my own strength. फिर मुझे ये पता चलता है कि पाप के ऊपर जय पाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का बेटा बनने के लिए मुझे अपने आप से कुछ करना नहीं है। To be like Jesus is impossible. प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना जो है मुमकिन नहीं है। To gain the nature or glory of Jesus is an impossible thing. प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है और जो महिमा है वो प्राप्त करना जो है असंभव है। I don't have it within me to do anything near to the divine life. मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं वो पवित्र जीवन जीने के लिए कुछ भी कर पाऊँ। The Bible says we are not adequate in ourselves. परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं। It's a new covenant. ये नई वाचा है। We are not adequate. हम पर्याप्त नहीं हैं। But it doesn't leave there. पर यहाँ पे नहीं छोड़ता वो। Our adequacy is in God. हमारी जो पर्याप्तता है वो परमेश्वर में है। Who has made us adequate? जिसने हमें पर्याप्त बनाया है। So God will make me adequate to become like Christ. तो परमेश्वर मुझे पर्याप्त करेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह से बनूं। So if there is some particular sin, तो हमारे जीवन में कोई पाप है, I know I have come to the zero point that I cannot do it. मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे एक स्थान पे पहुँच चुका हूँ कि मैं नहीं कर सकता। So I have to say to God, Lord, I know I cannot do it, but I want this life. I want you to do it for me. और मैं परमेश्वर को कहता हूँ कि प्रभु ये नहीं मैं कर सकता, परंतु मुझे ये जीवन चाहिए और मैं मानता हूँ कि आप ही मेरे जीवन में कर सकते हैं। And there is a wonderful promise in 1 John 5:14 and 15. एक बहुत ही अद्भुत सी वादा है पहला यूहन्ना 5 उसके 4 अध्याय में। This is the confidence that we have. If we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us and whatever we have asked, we know that we have received what our requests. पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 15 वचन, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। So brothers and sisters, this is my life, that anything I need, I tell the Lord, Lord, this I am not able to do it, but I want this and I am asking this, and because it is in His will, He hears it and He answers it. तो यही है मेरे जीवन में कि मैं परमेश्वर से कहता हूँ कि जब मुझे कोई ज़रूरत होती है मेरे जीवन में, तो मैं परमेश्वर से कहता हूँ कि परमेश्वर मैं अपने आप से नहीं कर सकता हूँ, पर आप ये मेरे जीवन में कर सकते हैं, मेरी ये ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। That is the new covenant life. यही है नई वाचा का जीवन। We cannot do it, but God's promises help us to do it.
जहाँ हम ये काम नहीं कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर के वायदे के अनुसार परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हम वो करें। By the grace of God, I have got a faith to be an overcomer in everything. परमेश्वर के वचन के अनुसार हाँ, मुझे विश्वास है कि मैं सारे पापों के ऊपर जय पा सकता हूँ। No sin can dominate me कोई भी पाप मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता, because God's grace is there upon me. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है। Okay? So, brothers and sisters, yeah. So, and then this new covenant life is so wonderful that 1 John chapter 5 verse 3 says, "This is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome." और पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसके 3 वचन में अद्भुत से एक वचन ऐसा कहता है, और परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। Before being having a knowledge or a revelation of the new covenant, I could never say this. I could say this, and I must have been preached about it. But now I can gladly say that His commandments are not burdensome. और नई वाचा का जो प्रकाश है वो मिलने से पहले हो सकता है कि मैंने कहा होगा, प्रचार भी किया होगा, पर अब मैं इस बात को कह सकता हूँ सच में कि परमेश्वर की आज्ञा जो है वो कठिन नहीं है। Because God will never ask us to do anything which we cannot do. क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कुछ भी ऐसा काम करने के लिए नहीं बोला है जो कि हम नहीं कर सकते हैं, Because He is our Father. क्योंकि वो हमारे पिता हैं। He is not a schoolmaster or a policeman. वो स्कूल का कोई जो अध्यापक नहीं या तो पुलिसमैन नहीं है। That is the new covenant. He is our Father. यही नई वाचा है कि वो हमारे पिता हैं। He delights in us. वो हमसे बहुत ही आनंदित रहते He हैं। rejoices over me. वो मुझ पर आनंदित होते हैं। Do I feel it? क्या मुझे ऐसा एहसास होता है? I feel the negative. Feel just the opposite. मैं उसका एकदम विपरीत महसूस करता हूँ। I feel just the opposite. मैं उसके विपरीत महसूस करता हूँ। But I believe that. पर मैं उस बात पर विश्वास करता हूँ। That's why my heart is happy. इसीलिए मेरा हृदय खुश है। This is the new covenant. यही नई वाचा है। Okay, brothers and sisters, I can keep on saying, but I want all the other brothers to also share now. मैं ये बातें बोलते ही रह सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि दूसरे जो भाई है वो भी आकर यहाँ पे बांटें। Life is so different after knowing the new covenant. नई वाचा को जानने के बाद जीवन जो है बहुत ही अलग हो जाता है। I hope my family has experienced at least a little difference in my life. मैं आशा रखता हूँ कि मेरे परिवार में, मेरे जीवन में जो थोड़ी सी जो बदलावट है उसको महसूस किया हो, उसको अनुभव किया हो उन्होंने भी। If it is not experienced, then whatever I'm saying is a fake. यदि उन्होंने इस बात का अनुभव नहीं किया है तो जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ हो सकता है झूठ हो। Okay, brothers and sisters, what the new covenant means to me? भाइयों बहनों, नई वाचा जो है वो मेरे लिए क्या है, That is the topic. यही है शीर्षक। What the new covenant means to me. नई वाचा मेरे लिए क्या है।